Hello everyone, welcome to the new video. My name is Dr. Nisha. So let's start this video with a question. So the question is, what would happen if we practiced English every day? Yes, we would improve faster. How would we improve? If we practiced English every day. Yes, that's a conditional sentence. So in this video, we are going to learn about conditional sentences. So let's dive into the video. Let's start with conditional sentences. Conditional sentences are categorized in 4 parts. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. So why we call it conditional sentences? Because conditional sentences gives us a situation, that is if situation, and if situation provides us a result. Okay, so every conditional sentence has two clauses or two parts. First clause is called if clause, okay, which gives us a situation, and second clause is called result clause or main clause. Now let's understand it with these sentences. If the sun sets, it becomes dark. Okay, if the sun sets, so it is giving us a situation and the result of the situation will be becomes dark. If it rains tomorrow, I will take an umbrella. If it's giving us a situation and the result of that situation. If I had a superpower, I would educate everyone. Okay, it is also giving us a situation. This is a if situation and this is a result. If I had studied harder, I would have passed the exam. Same with this last sentence. Now we have come to the zero conditional sentence. So why we call it zero conditional? Because zero conditional always talks about a real situation, okay, about a real situation or a scientific fact or habit, okay. Now for example, if this happens, that happens. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि हम if के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे if क्लॉज में, और मेन क्लॉज में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे. इफ दिस हैपेंस दैट हैपेंस. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है ना. इफ इट रेन्स वी स्टे होम. तो इट इज लाइक अ हैबिट, ठीक है. So it is talking about a real situation. It's giving us a real situation. That is the reason we call it zero conditional sentence. Now, first conditional sentence. First of all, just clear why we call it first conditional. Because first conditional always talk about real future possibility. Okay. As zero conditional में हमें रियल सिचुएशन के बारे में बात होती है ना. पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल में रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात होती है. फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात होती है जो कि रियल है. ओके, जैसे कि इफ दिस हैपेंस दैट विल हैपन, दैट कैन हैपन, दैट माइट हैपन और दैट कुड हैपन. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमारा कि इफ की सिचुएशन में पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो इफ हमारा इफ क्लॉज हमारा इफ आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, और दूसरे क्लॉज में हम लगाएंगे विल,
वर्ब फर्स्ट फॉर्म और मॉडल्स भी लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। यानी कि विल की जगह आप मॉडल्स यानी कि कैन, माइट, कुड, ये सब आप यूज कर सकते हैं। If you don't subscribe my channel, you will miss important grammar lessons. तो ये क्या बता रहा है? रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तुम इंपॉर्टेंट ग्रामर लेसन्स को मिस करोगे, ठीक है। तो हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है जो कि रियल है। इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू मे क्लोज द डोर टू न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। Okay, it is also telling us real future possibilities. अगर तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो तो तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हो। ओके, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में हम इसको क्यों बोलते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस? बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स अस एन अनलाइकली, unreal situation or about our wishes, about imagination or dreams. Okay, it always emphasizes on dreams and imagination that are not real. Okay, so if this happened, that would happen. ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता या हो सकता था। हम कई बार would की जगह यहाँ पे could भी लगा सकते हैं, ठीक है। We can use here, sometimes we can use here could, ठीक है। So if के साथ if simple past, if लगा देना है आपने simple past, और मेन क्लॉज में आपने जो कॉमा लगा के हम लगाते हैं वहां पे would और verb की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। If you spoke English, you would unlock new opportunities in your life, ठीक है। अगर तुम इंग्लिश बोलते तो तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी या होती, ठीक है। तो ये एक अनरियल सिचुएशन को बता रहा है जो कि ट्रू नहीं है, मतलब पास्ट की बात, पास्ट बता रहा है जो कि अनरियल है। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। ये भी इमेजिनेशन बता रहा है, रिच तो नहीं है ना वो, ठीक है। मैं रिच तो नहीं हूं जो कि मैं पुअर की हेल्प करती। इसी तरह से इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, इट इज इमेजिनेटिव सेंटेंस और सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, व्हाई वी कॉल इट थर्ड कंडीशनल सेंटेंस? बिकॉज it gives us a situation of unreal past and especially it is used for regret or feeling guilty concept. Okay, इसके लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। और सेकेंड कंडीशनल टेंस का हमने कहाँ यूज किया था? सेकेंड कंडीशनल टेंस का हमने जो प्योरली हमारा जो ड्रीम होता है, विश होता है और इमेजिनेटिव सिचुएशन के लिए हमने सेकेंड कंडीशनल का यूज किया था। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी हमारा अनरियल होता है, इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि हम पास्ट की बात करते हैं जो कि कभी, क्योंकि हम पास्ट में वापस जाके तो वो काम नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम इसको इमेजिनेशन वाला बोलते हैं और अनरियल पास्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमने काम करना था पर वो नहीं हुआ, ठीक है, और अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता, पर वो पास्ट में था तो वो अनरियल हो गया, जो कि अब कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। So if this had happened, that would have happened. अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, है ना। If this had happened, okay? तो if के साथ आपने past perfect लगाना है, past perfect, ठीक है। और कॉमे के साथ यानी कि मेन रिजल्ट में हमने लगाना है would have और verb की थर्ड फॉर्म, ओके। इसमें हम could have भी लगा सकते हैं, could have, might have, okay? So if he had told me the truth, I would have helped him. अगर उसने मुझको ट्रुथ बता दिया होता, सच बता दिया होता, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था या कर सकती थी। तो ये एक रेग्रेट है ना, एक सिचुएशन है जहां पे कंडीशन जो है वो पास्ट की कंडीशन है, जो इफ कंडीशन है, इफ सिचुएशन है वो पास्ट की है, और जो रिजल्ट वाली सिचुएशन है वो भी पास्ट की है ना। तो पर दोनों जो कंडीशंस यानी कि जो कंडीशन है और जो रिजल्ट है वो दोनों ही पास्ट के हैं, जो कि फुलफिल नहीं हो सकते अब, तो इसीलिए हम इसको अनरियल पास्ट बोलते हैं और रेग्रेट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं।
If they had left earlier, they would have caught the train. अगर वो जल्दी निकल जाते तो वो ट्रेन पकड़ सकते थे या फिर पकड़ लेते. ठीक है, तो हम यहाँ पे could भी लगा सकते हैं. ठीक है, और वहां पे भी हम could लगा सकते हैं. अकॉर्डिंगली आप इसको कैसे बोल रहे हो, ऐसे आप इसको could या would में या might में आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा अनरियल पास्ट है, और इट इज ऑल्सो गिविंग अ साउंड ऑफ रिग्रेट. ठीक है, ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो उसमें हैबिट्स होती है, फैक्ट्स होते हैं, रियल सिचुएशंस होती है. आप इसको ऐसे भी यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज zero conditional sentence, think about science and think about scientific facts or your habits or any real situation. और जो फर्स्ट वाला होता है उसमें आप रियल पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हो, रियल फ्यूचर की बात सोच सकते हो कि थिंक अबाउट इफ इट कुड एक्चुअली हैपन, है ना, कि अगर ये रियल फ्यूचर में कैसे होता है, मतलब कैसे होगा. ठीक है, सेकंड को आप किससे कर सकते हो, इमेजिनेशन, ड्रीम्स एंड इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए यूज होता है. सेकंड को आप कैसे याद कर सकते हो, थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता. ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है. और थर्ड को हम पास्ट की जो हमारे ड्रीम्स हैं या जो हम करना चाहते थे, व्हाट वी वांटेड टू डू, और जो भी हम करना चाहते थे, या फिर किसी बात पे हम गिल्ट फील करते हैं और वी फील रेग्रेट, तो you can just think about that and use this. Okay, so now I am giving you 4 sentences, the if clause, okay, and you have to fill the dash with main clause or result clause. If you had a superpower, comma, then what would you do? If you had studied harder, then what would have happened? If you were a doctor, then what would happen? If you won the lottery, then what would happen? Okay, write all the sentences, main clause, in comment box below. Thank you for watching. I hope you like this video. Thanks for watching.